Good evening, good afternoon, good morning, namaskaram, namaskar, and vanakkam. Welcome to Bob's Radio 21.37 FM, and this is Bob with you. Well, dear friends, thank you so much for tuning in today on our Motivational Mondays right here on Bob's Radio. And this is your host, Bob. Well, today is our Hindi language broadcast that we have every Monday. And it's very unique because you have a host who does not speak Hindi. But hopefully you'll enjoy our other sessions because we have lots of Hindi coming up, and you will have a smile on your faces at the end of this day. If you're tuning in for the first time, Bob's Radio broadcasts every Monday in Hindi, every Wednesday in Bengali, and every Thursday in English. You can find us on YouTube or Facebook by simply typing in Bob's Radio 21.37 FM, and you'll find us there. If you would like to write to us, simply write to us on Bob's Radio 21.37 FM at gmail.com, or WhatsApp us on +91 906 181 7307. We love to hear from you, and thank you so much for tuning in today. God loves you, and we love you too. As always, I have some wonderful co-RJs in the virtual studio with me. Let me go to them. I have from India, RJ Singh. Singh Saab, Sat Sri Akal. Hello. Hello, Bob. Sat Sri Akal. Good evening to all my listeners. Yes, good evening. How are you doing? मैं बहुत अच्छा हूँ और आप कैसे हैं बॉब? Hey, doing good, doing good. We have an unexpected break today in UAE, so many of us are at home today. We'll talk a little bit about that later on in the program, but I'm sure you all know about that in India as well. Once again, Singh Saab, we'll come back to you, and we have lots more that we want to talk about. Let's also talk to our other two RJs from UAE. RJ Anuj. Hi, Anuj. हाय बॉब, हाउ आर यू? मैं बहुत बहुत ही ठीक हूँ, अच्छा हूँ. आप कैसे हो बॉब? गुड गुड गुड. तो आज एक थोड़ा ब्रेक मिला ना? हाँ, 3 दिन से एक्चुअली 3 दिन से All right. आराम करने का टाइम मिला. हाँ. इट वाज अ ग्रेट लॉस. Yes. इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद. हाँ, exactly. And we also have RJ Nimmi. Hi, Nimmi. Jai Masiki Bob, how are you? Good, good, so good. Nice to hear your voice as well. And today, for the first time, we have a new RJ joining us, RJ Billu. Hi, Billu. हाय बॉब, कैसे हो? I like your name, RJ Billu. यार ऐसे सब लोग को पसंद आना चाहिए ना मेरा नाम. Exactly. और आपका वॉइस भी बहुत अच्छा है. Thank you so much for joining us. Yeah, we are going to have some great times. Well, we have lots more to come. We have a very, very special guest joining us from Bihar, and there are lots more that we want to talk to you about. So stay tuned. Don't go anywhere. But before we continue, let's listen to this beautiful song, one of my favorite songs. Let's listen to that, and we'll come right back. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई. जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम. जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है.
सबसे ऊंचा है. What a beautiful song. Sing Sab enjoyed the song, didn't you? हाँ, मुझे तो ये गीत बहुत ही पसंद है. बहुत अच्छा लगा आपने इस गीत को प्ले किया. ईशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. सबसे What a ऊंचा है. great truth, yeah. या अरे बहुत सच सारे में लोग they have come and gone, लेकिन the name of Jesus, है ना? हाँ, सही बोल रहे हो आप. यीशु मसीह का नाम सच में वो सर्वश्रेष्ठ और सबसे ऊंचा नाम है. Wonderful. उसके साथ कोई नाम नहीं. Absolutely. Well, we are going to talk a little bit about what's happening here in the UAE, and like many of you know, we want to, from Bob's Radio, we want to give our condolences to the bereaved family, the royal family of His Highness Sheikh Khalifa, the president of UAE, who passed away the other day. A mourning period has been declared in UAE, and condolences from Bob's Radio. All offices are remain closed. Public and private sector employees will return back to work tomorrow. And on this very occasion, Bob's Radio extends our deep condolences to the royal family and also to all the people of UAE. Sheikh Khalifa had maintained close links with the country's citizens and residents, winning everyone's trust and affection. He was a wonderful leader, and he also recognized the value of having those close relationships with his people in the UAE. In 2010, he issued celebrations for the 39th National Day, and in the 40th year of the founding of the country, there was a slogan that says Kulluna Khalifa, which means we are all Khalifa. And that is a true statement of who he was, one with his people. So we remember the ruler, Sheikh Khalifa, who passed away, and extend our condolences. And Anuj, we have a new president. यस संयुक्त अरब अमीरात के दिवंगत राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नयान के निधन के बाद फेडरल सुप्रीम काउंसिल ने प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नयान को नया राष्ट्रपति चुना है. नए राष्ट्रपति मोहम्मद बिन ज़ायद अल नयान को बॉब्स रेडियो और टीम की तरफ से बधाइयाँ. Yes. Nimi? Yeah, hearty congratulations to our new ruler, President His Highness. May the Almighty give all wisdom and guidance to rule this land. Yes. And Ajay Billu? हाँ जी, शेख खलीफा की इस मृत्यु के इसी संदर्भ में हमारे साथ जुड़े हुए सारे श्रोताओं को हमारे बॉब रेडियो की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. और हमारे नए प्रेसिडेंट भी हैं जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान, उनको भी जो है बॉब रेडियो की तरफ से सारी बधाइयाँ हम अर्पित करते हैं. Excellent. All right. With that, we always love to celebrate on certain days on the radio. We look at what's happening around, and today is May 16th. Anuj, May 16th, what are we observing or celebrating on Bob's Radio? आज मई 16 है बॉब. हाँ. एंड आपको पता है क्या, आज पूरे राष्ट्र में अपने पड़ोसी के लिए कुछ अच्छा करे दिवस करके मनाया जाता है. डू समथिंग गुड फॉर समबडी. Do something good for somebody, especially do good for your neighbor, yes? फॉर योर नेबर, एग्जैक्टली फॉर योर नेबर. और आज हम लोग रेडियो में ना इस बात पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे. ठीक है. And I'm sure, Ajay Nimmi, I'm sure you have some wonderful experiences. हाँ बॉब, मुझे इस नेशनल डे सेलिब्रेशन लाइक डू समथिंग गुड फॉर योर नेबर, जब ऐसे आज बोल रहे थे तो मुझे कुछ याद आया. जो मेरे अंकल थे, नेम थॉमस था, उनका फैमिली दे वर हियर एंड ही हैड अ नेबर like who lost his job, and he was staying with his family. Yeah. But this uncle, he was so kind and he was so humble. वो इतने बहुत ही अच्छे हैं उनके स्वभाव के हिसाब से. And then he took full responsibility of that family. उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली. उनके बच्चे थे, वो स्कूल जाते थे, लेकिन जैसे उनके फादर ने जैसे जॉब उनका छूट गया था, तो बच्चे लोग का लाइक स्कूल एकेडमिक स्टार्ट होने वाला था, तो उन्होंने पूरा बुक्स खरीद के दिया, बैग, यूनिफॉर्म्स और घर का पूरा सामान ऐसे सब खरीद के दिए. तो और उनको मैक्सिमम जितना हेल्प कर सकते थे उन्होंने उतना किया.
तो अच्छा ये सब एक लेसन था मेरे लिए, और ये मैं बहुत ही स्पर्श हो गई थी इस बात से, और मुझे कुछ सीखने को मिला, लाइक लव लव वन अनदर एज द करेक्ट वर्ड ऑफ गॉड सेज, कि एक दूसरे से प्यार करो, और जो जॉय, पीस, हैप्पीनेस जो मिलता है हमें, दैट इज समथिंग ग्रेट इनफ। और क्या चाहिए यहाँ पे, जब हम रहते तो एक दूसरे को हेल्प करो, दैट इज Exactly. व्हाट। Exactly. Well, thank you so much for sharing that. Billu, you know, यहाँ जो culture है, especially UAE में और Middle हाँ East में जी। हम देखते हैं कि हम सब लोग में flat, you know, flat में रहते हैं, और sometimes जो पड़ोसी है वो कहाँ से है, किस देश से है, वो भी मालूम नहीं है. हाँ, But sometimes, you know, when we are going in the lift, going up and down, हाँ or जी। maybe in the parking, मिलते हैं, थोड़ा बात करते हैं, we get to know our neighbors, but sometimes we don't. I mean, that's very, you know, unique to this part of the world, right? सही कहा, सही कहा। आपने एकदम सही कहा। बहुत सारे लोग मतलब हम सब अनजान हैं एक दूसरे से। कोई अपने देश से तो जान पहचान करके तो आते नहीं हैं। हाँ सब अकस्मात पहुंच जाते हैं यूए में। हमारे काम के दौरान कोई पहुंच जाते हैं, या फिर कोई विजिट वीज़ा में पहुंच जाते हैं। और अभी तो गोल्डन वीज़ा भी निकल गया। तो हम्म अच्छी बात है। और इसी दौरान मुझे एक कहानी याद आ रहा। हम्म एक बंदा था जिसको हम अच्छे सामरी कहते हैं। और इसी व्यक्ति ने क्या किया कि उसने भी ऐसे एक जगह से लेकर दूसरे जगह पर वो यात्रा कर रहा था। तो क्या हुआ कि रास्ते में उसे एक अधमरा सा व्यक्ति, जिसमें कोई जान नहीं, ऐसे व्यक्ति को मिला। और फिर उसकी इतनी मदद की, उसकी बहुत मदद की। यार मैं तो उस कहानी को पढ़ रहा था और मैं बहुत चक्का रह गया कि भाई ये कैसा कर सकता है ना? वो तो दोनों अनजान एकदम है। एकदम स्ट्रेंजर. हाँ हाँ, एकदम स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर हम इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में हम उसे अनजान व्यक्ति, है ना, हम इस प्रकार से हम कहते हैं। ये हाँ बंदा बेचारा, उसने अपना जितना भी उसके पास था, उसने सब कुछ, तेल था, उसके पास जो कुछ मरहम पट्टी कर सकता, क्योंकि इतनी बुरी तरह से वो दूसरा बंदा वो एकदम अधमरा स्थिति में पड़ा हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि उस बंदे ने जो जिसको मैं अच्छा सामरी कहता हूँ, या फिर अच्छा एक पड़ोसी करके कह सकते हैं, उसी व्यक्ति ने क्या किया, उसने अपने जो सब कुछ है वो दे दिया, ताकि उस बंदा बच जाए, है ना? एग्जैक्टली. यूए में भी हम देखते हैं कि हमारे शेख, हमारे जितने भी लोग हैं, इवन हमारे कंपनीज जिसमें हम काम करते हैं, वे लोग भी जो है हमारी हेल्थ की बहुत केयर करते हैं, है कि नहीं? इसलिए यूए में हेल्थ इंश्योरेंस है, बहुत सारी चीज है। तो हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं। हमारा स्वास्थ्य ही हमारा धन है, इस प्रकार से कहते हैं। तो इसी बंदे ने बहुत ही मदद किया, और आखिर में हम देखते हैं कि जो अधमरा व्यक्ति था उसके अंदर पूरे जान आ गया, और वो बच गया, है ना? और ये मैं इसे है ना, कि दूसरों को मदद करना, उनकी जरूरतों पर मदद करना, या फिर अनजान व्यक्ति को अपने तौर से सहायता करना, ये सब एक अच्छा एक पड़ोसी का चिन्ह है, ये मैं समझता हूँ। Exactly. Anuj bhai, I think you also want to add to that story. बिल्कुल सही बॉब। जैसे बिल्लू भाई ने बताया, एक गुड समैरिटन का स्टोरी जो बताया अभी इन्होंने, एक अनजान आदमी ने एक अनजान आदमी को, दूसरे अनजान आदमी को मदद किया। वैसे ही हम लोग बाइबल में और भी ऐसी कहानियाँ देख सकते हैं। आपको पता होगा नमान के बारे में, जो कोड़ी का रोग उसको लगा हुआ था, उसको एक नौकरानी ने, उसके घर में काम करने वाली एक नौकरानी ने मदद किया। उसने नौकरानी ने उसको बताया कि कैसे वो जाके इसराइल में जाके एक वहाँ पे अपने कूड़ को दूर करने का उसका क्या तरीका है, उस नौकरानी ने उसको बताया। मैं मानता हूँ, जैसे अभी भाई बुल्लू ने बताया कि हमारे जो पड़ोसी कौन है, ये सवाल जो है पड़ोसी कौन है, पड़ोसी आपके घर के सामने साइड में रहने वाला नहीं। पड़ोसी वो नहीं है जो वो भी पड़ोसी है, पर मेरे को लगता है आपके साथ रोज पर रोज आपकी ज़िंदगी में मिलने वाले, आपके आगे पीछे चलने वाले, आपके साथ काम करने वाले, हो सकता है आपके बॉस हो सकता है आपके साथ पढ़ने वाले हों, ये सब आपके पड़ोसी होते हैं। तो इनके लिए कुछ करना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। Exactly. And I think Jesus also, when he told about the Good Samaritan story, which Ajay Bilu had mentioned, you know, the whole
purpose of that story where Jesus is, asked, who is your neighbor? And he's trying to explain who exactly is your neighbor. हम तो बहुत सारे, we have lot of things in our life, but do we really care about a neighbor? जो पड़ोसी है, do we really care about them? जो हमने अभी वो कहानी में सुना है, like when they are in trouble, when somebody needs help, are we really willing to go out and help them? है ना, सिंह साहब? बिल्कुल बॉब, एक्चुअली मालूम है आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो आपने एक स्टेटमेंट बताया ना कि हम लोग को एक दूसरे को केयर करना चाहिए, हाँ, ये बात आजकल के ज़माने में, आजकल के दौर में लोग अपने ही सेम स्टेटस के लोगों को, अपने ही साथ उठने बैठने वाले लोगों को कोई ही देखते हैं, उन्हीं को प्यार करते हैं। हम लोग ये भूल गए। परमेश्वर ने बोला कि सबको एक समान, एक रूप में, राइट? पर वो हम काफ़ी लोग भूल गए इसके बारे में, और ये चीज़ याद करना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। एग्जैक्टली। अच्छा, हाँ सिंह साहब, यू आर बैक। यस। हाँ, मैं भी सोचता हूँ कि मैं इस कथन को कहना चाहता हूँ कि पड़ोसी तो सब बन सकते हैं, पर सच में एक अच्छा पड़ोसी बनना, ये हमारे लिए सच में मायने रखता है। और हमें सच में दूसरों के एक अच्छे पड़ोसी बन के रहना चाहिए, दूसरों की हमेशा सहायता करनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कितना भी अनजान क्यों ना हो। पर मैं सोचता हूँ ये हम इसे अपने आप से नहीं कर सकते, क्योंकि मानुषिक रीति से उसे करना, अपने स्वभाव से करना, वो उस व्यक्ति को प्रेम करना या उस व्यक्ति की सहायता करना, वो हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। परंतु जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा, जब उस जीवित परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा, तो वो हमें विवश करेगा, वो हमें मजबूर करेगा कि हम उस व्यक्ति की, उस अनजान व्यक्ति की हम सहायता कर पाए। और यदि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, तो हम अपने हर पड़ोसी से हम बिल्कुल वैसा ही प्रेम करेंगे जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। Amen. Amen. All right. Now it's time for us to go to our next song. I hope all of you enjoyed that segment on the National Do Something Good for Your Neighbor Day. Let's listen to this next song, and it says Ye Duniya Badi Dharmashala. We'll come back and talk a little bit about that song after we listen to it. This is also one of my favorite songs. Let's listen to the song and we'll be right back. ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। धर्मशाला पे स्टेशन लगा है, आता जाता मुसाफिर खड़ा है, 2 घड़ी का है मेहमान यहाँ पर, हर कारोबार चलता यहाँ पर, अपनी करनी पे इतरा रहा है, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। उन्नत जीवन की गाड़ी खड़ी है, जिसमें यीशु की आशीष बड़ी है। इस गाड़ी में घर तू बसा है, अनंत जीवन का स्टेशन मिला है। मार्ग सत्य और जीवन है यीशु, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा
कर तैयारी जाने की वहां पर। ताज आसमानी पाए तू वहां पर। यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा कोई जा रहा है। रहा है। ब्यूटीफुल, हाँ? सच में या सच में ये दुनिया जो है ये एक धर्मशाला के समान है। यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। इसमें बहुत एक गंभीर सच्चाई को गीतकार ने लिखा है कि बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, पर हमारा यहाँ पर जीवन हम किस रीति से व्यतीत करते हैं, क्या हमने इस जीवन में रहकर इस पृथ्वी में क्या हमने सच्चे परमेश्वर को अपने जीवन को दिया, या सच्चे परमेश्वर को हमने पहचाना। इसलिए वो गीतकार आगे कहता है कि दिल ना अपना लगा ले, यहाँ पर थोड़ा वक्त रह गया है। हाँ। सच में हम पास थोड़ा सा वक्त ही रह गया है और हमारा प्रभु यीशु मसीह वह जल्द बादलों पर प्रकट होगा। इसलिए हम जैसे थोड़ी देर पहले एक अच्छे पड़ोसी के बारे में बात कर रहे थे, मैं आप हमारे सुनने वालों से यही पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास एक ऐसा मित्र है, एक ऐसा पड़ोसी है जो आपको स्वर्ग ले जा सकता है, या आपके पास क्या उस जीवित परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है? और अगर वो प्रेम अगर आपके अंदर है, यदि परमेश्वर आपके अंदर है, तो परमेश्वर सच में आपको स्वर्ग लेकर जरूर जाएगा। Amen, amen. Billu bhai, I think you also loved the song. हाँ बॉब, ये गाना बहुत ही एक मनोहर, एक सुंदर सा गीत है और काफी बार इसे मैं गाता हूँ, जहाँ कहीं भी जाता हूँ, कहीं यात्रा करते समय गाता हूँ। और एक बात इसमें बार बार याद दिलाता है, उसमें एक पंक्ति है जो कहती है धर्मशाला में स्टेशन लगा है कि नहीं? हाँ। हम स्टेशन में होकर हम गुजरते, कोई यहाँ पर स्थिर नहीं है। इस बात की एक धारणा या फिर इस बात को बार बार याद दिलाता है। गीतकार ने मस्त से इसे अच्छे तौर से इसे प्रस्तुत किया। वो कहता है धर्मशाला में स्टेशन लगा है, आता जाता मुसाफिर खड़ा है ना? हम सब मुसाफिर हैं इस संसार में, हम सब मुसाफिर है, हम इस संसार को छोड़कर जाने वाले हैं। लेकिन इस गीतकार ने आगे ये भी आह्वान देता है कि जाओगे तो स्वर्ग जाने की तैयारी करो, क्योंकि राजा जल्द से पधारने वाला है, राजा जल्द से आने वाला है। और जितनों ने उस राजा को स्वीकार करते अपने दिल में, जितनों ने उस राजा को अपने दिल में स्थान देता है या बुलाते हैं, वो उस राजा के साथ जरूर जाएगा। और इस बात को स्मरण करे और इस बात को याद दिलाते हैं कि इस संसार का अंत जल्दी होने वाला है और राजा पधारने वाला है। Yeah, absolutely. And Singh Saab, I think we have an opportunity for our listeners to suggest songs and to tell us about their songs and to dedicate songs, है ना? हाँ, बिल्कुल बॉब, हमारे सुनने वालों को हम एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं। आप लोग अपने मन पसंदीदा गानों के नाम हमें भेज सकते हैं ताकि आप लोग उन्हें सुन सकें। Absolutely. So please send us your song requests and we'd love to play them on our Bob's Radio. Well, next we have a small segment called Choti Kahaniyon Ka Bade Baat, and this is sent to us by Sister Mary Lijish. Let's hear what she has to tell us today on this small story. पता है क्या आने वाला है? क्या? छोटी कहानियों की बड़ी बातें। कहानियाँ? हाँ। छोटे कहानियों के बड़ी बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाऊंगी। छोटे बच्चों का भी स्वभाव विचित्र होता है, कभी हमें आश्चर्य से भर देता है, कभी हमारे सोच से समझ से परे होते हैं इनका बर्ताव और प्रतिक्रिया। एक दिन एक गांव में बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ घूमने निकले। घूमते घूमते वे एक दुकान में पहुंचे। ये माता पिता अक्सर इसी दुकान से सामान लिया करते थे। तो उस दुकानदार ने उस दिन आए हुए बच्चों से बोला कि मिठाई के डब्बे में से हाथ डालकर मिठाइयाँ आप ले लो या टॉफीज ले लो। बच्चे ये सुनने की देरी थी, सब दौड़ कर आए
और कहने लगे, मुझे चाहिए, मैं पहले लूँगा, अंकल अंकल मुझे दो। फिर दुकानदार ने बोला, हाँ बच्चों, एक एक करके हाथ डालकर ले लो। पहले एक ने डाला, उसके छोटे से हाथ में 3 टॉफ़ी आई। फिर एक ने और उस डब्बे में डाला तो उसमें 2 टॉफ़ी आई। फिर एक बच्चे ने और डाला तो उसके हाथ में 4 टॉफ़ी आई। उस तरह से इन 3-4 बच्चों ने टॉफ़ी ले लिया, लेकिन एक लड़की अभी टॉफ़ीज़ लिए बिना ही खड़ी थी। तो दुकानदार ने उससे बोला, बेटी आप भी ले लो। तो उसने मना कर दिया और ऐसे कुछ दिखाया कि आप ही दे दीजिए, इस तरह से कुछ इशारा दिखाया। फिर दोबारा दुकानदार ने बोला कि आप ले लो बेटा। तो उसने फिर से ऐसे कुछ इशारा दिखाया कि मैं नहीं लूँगी, आप दे दो। उस लड़की की माँ ने भी उस लड़की से बोला, बेटी कोई बात नहीं, आप ले लो, लेकिन उसने नहीं लिया। फिर दुकानदार ने उस टॉफ़ीज़ के डब्बे में हाथ डालकर उसको टॉफ़ीज़ दिया। उसको करीब 10-12 टॉफ़ीज़ उस अंकल ने अपने हाथ डालकर लेकर दिया। अब उसको पूरे 10-12 टॉफ़ी मिला था। वो खुश होकर माँ के साथ घर जा रही थी। रास्ते में माँ ने पूछा कि बेटी आपने पहले क्यों नहीं लिया टॉफ़ीज़? आप क्यों वेट करते रहे? मैंने तो आपसे बोला था फिर भी नहीं लिया। तो बेटी ने बोला, माँ घर में भी तो आप मुझसे कुछ लेने को बोलती हो, तो मैं कहाँ लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितना लेना है, कैसा है, अच्छा है कि नहीं। मैं आपका वेट करती हूँ ना, ताकि आप मुझे दो। और देखो, जब मैंने वेट किया तो अंकल ने मुझे 10-12 दिया, बाकी लोगों को तो 2-3 ही मिल पाया। वैसे ही मैं हमेशा वेट करती हूँ ना, इसीलिए मैंने पहले अपने आप नहीं लिया। बेटे के उत्तर ने माँ को आश्चर्यचकित कर दिया। वो आनंद से भर उठी। हाँ प्रियो, हमारे जीवन में भी जब हम अपनी मर्जी से चुनने का अवसर हमें मिलता है तो अपने लिए हम चुन सकते हैं, पर वो कितना अच्छा है, कैसा है, उत्तम होगा, हमें नहीं मालूम। पर अगर हमारे चुनावों को परमेश्वर के लिए छोड़कर प्रतीक्षा के साथ प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमें उसकी महिमा के अनुसार उत्तम से उत्तम देगा। परमेश्वर हमें भलाइयों से तृप्त करता है, सारे उत्तम दानों से हमें भरता है। तो हम भी परमेश्वर का इंतज़ार करें। परमेश्वर इस कहानी के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक जय यू सो मसीह की, मच। जय मसीह की। हाँ, आई थिंक अनिश भाई, द वंडरफुल स्टोरी, छोटी कहानी था लेकिन सच में बोल रहा हूँ बॉब, इस कहानी को सुनकर, क्योंकि ये तो पहली बात तो टॉफ़ी के बारे में थी, मेरे मुंह में मिठास आ गई। ये कहानी भी उतनी मीठी थी, सच में बोलो तो ये कहानी भी उतनी मीठी थी। सिस्टर ने बहुत बहुत अच्छी तरह बताया और बिल्कुल सही सीख भी इसमें मिलता है कि हम जब परमेश्वर के लिए वेट करते हैं ना, तो हमें वो सबसे उत्तम तरीके से हमें गिफ्ट देता है। बिल्कुल सही कहा सिस्टर ने, बहुत बहुत अच्छी तरह उन्होंने प्रस्तुत किया इसको। Absolutely, absolutely. And I think it's time for us to bring our special guest on air. We have a very, very special guest joining us today from the land of Bihar. Today we have Jebi K. Simon. Singh Saab, over to you for our introduction. जेबी के साइमन वर्तमान में बिहार के निवासी हैं। इनका जन्म केरला के पदनमतिट्टा जिले के कुम्भनाड में हुआ। इन्होंने डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, एक्सरे और ईसीजी में शिक्षा को प्राप्त किया। इनकी रुचि गाना लिखना, आर्टिकल लिखना इत्यादि है। आप इनके मधुर गानों को YouTube में सुन सकते हैं। इन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए अनेक गीतों को लिखा है। इनकी पत्नी का नाम जैस्मिन और बच्चों का नाम जेफिन एंड जेस्विन और बेटी का नाम जैना है। कटिहार में आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। कलीसिया की स्थापना करना, अनाथ बच्चों को पालना, उनकी सुधि लेना, स्थानीय कलीसिया की सेवकाई को आप बिहार में रहकर कर रहे हैं। वर्तमान में आप गुड समैरिटन्स चिल्ड्रन होम नामक अनाथालय में अपनी सेवा दे रहे हैं और प्रभात मनन की सेवकाई जो आज वर्तमान समय में व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है, परमेश्वर उस सेवकाई को भी आपके द्वारा परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है और आशीषित कर रहा है
और आप प्रभात मनन के द्वारा परमेश्वर के वचन की शिक्षा अनेक लोगों तक पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। Absolutely. We have a wonderful guest. Thank you so much for that introduction. Let me also talk about Bihar, because before we talk to JBK Simon, we need to talk about Bihar a little bit. है ना अनुज भाई? बिल्कुल सही बॉब। बिहार के बारे में अगर कुछ बोलना है तो मेरे को जो सबसे अच्छा लगता है बिहार के बारे में, एंड आई थिंक ये सब लोग जानते हैं इस बात में कि सबसे ज़्यादा IPS IAS पढ़ के बाहर निकलने वाला एक स्टेट बिहार है। Exactly. और Exactly. इट्स बहुत ही गन्नों के खेत, फैक्ट्रियाँ यहाँ पे हैं, एंड भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है बिहार का। Exactly. हमारे बाकी आरजे इसके बारे में और बता सकते हैं हमारे को। हाँ, Billu, I think you know a little more about Bihar and the history and how significant it is to even the freedom struggle of India, yeah? हाँ, वहाँ पर अगर बताया जाए तो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद, ऐसे बड़े बड़े नेता हैं वहाँ से ही आए, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब वहाँ से निकले। और बड़ा ही बिहार का यानी कि राष्ट्र में भी, राष्ट्रीय क्षेत्र में भी बहुत ही बड़ा नाम है, और बहुत अच्छी एक जगह है। और जैसे हमारे अनुज बता रहे थे, आरजे अनुज वो बता रहे थे कि गन्नों का जो है फैक्ट्री लगा हुआ है, गन्ने हैं, तो बहुत ही एक सुंदर सा एक जगह है। Exactly. Well, जो भाई बहनों, if you're listening to us from Bihar, we love you for tuning in. Thank you so much. It's time we bring our special guest on air. Let's bring JBK Simon on air. Bob's Radio 21.37, keep bobbing along. Evangelist JBK Simon, welcome to Bob's Radio. Hi, Bob. Thank you very much for inviting me once again to the platform of Bob's Radio. Yes. मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मैं दूसरे बार अभी बॉब्स रेडियो प्लेटफॉर्म में आ रहा हूं। पहली बार जब आप लोगों ने इस सेवा को शुरू किए थे, उस समय आई थिंक इट वाज इंग्लिश मलयालम प्रोग्राम, उसमें भी आने का मौका आप लोगों ने दिया। अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि यद्यपि मैं दक्षिण भारत से हूँ, परंतु मेरी सेवा और मेरा जो सेवा क्षेत्र है वो उत्तर भारत है, और इसलिए मैं इस बात पर बहुत बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने हिंदी में भी इस सेवा को शुरू किया, और उसमें मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया। इसलिए मैं बॉब्स रेडियो के सभी टीम मेंबर्स को मेरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम भी अपने परमेश्वर का सच में हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आपको हमारे साथ, हमारे बॉब्स रेडियो ऑनलाइन क्रिश्चियन रेडियो में 21.37 FM में हमें आपको हमारे साथ फिर से जोड़ा, लेकर आया। हम सच में इस अवसर के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और हम फिर से अपने श्रोतागणों को आपके जीवन के विषय में, आपके विषय में हम चाहते हैं कि हम लोग और जानें, और आपके विषय में और सुनना चाहते हैं। तो अब मेरा सबसे पहला सवाल जेबी भैया आपसे ये है कि इतिहास में हम देखते हैं कि बिहार जो है वो भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता में उसका काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है पहले से ही। Exactly. जी, पर वर्तमान में बिहार को भारत का सबसे कम विकसित राज्य माना जाता है। ऐसा क्यों? पर आप इतने सालों से वहां पर रह रहे हैं, बिहार में हैं, और आपको क्या लगता है, आपके क्या राय है इसमें? बिल्कुल सिम साहब, आपने सही कहा। बिहार की जो पास्ट ग्लोरी है वो इतनी अच्छी है, जो है नालंदा, विक्रमशिला आदि दुनिया के सबसे पुराने यूनिवर्सिटीज़ बिहार में थे। और आपको पता है, भारत जब आज़ाद हुई थी 1947 में, बिहार वाज द थर्ड रिचेस्ट
स्टेट इन इंडिया, तीसरा सबसे आर्थिक रूप में मजबूत राज्य बिहार था और गांधी जी ने यही से स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था। तो बिहार के जो पास्ट ग्लोरी है बहुत अच्छी है, लेकिन आपके जो प्रश्न है इसका जवाब यदि मैं बोलूँ तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे राजनैतिक कारण हैं, सोशियो इकोनॉमिक रीजंस है, परंतु विशेष करके एक प्रभु के सेवक के रूप में मैं सोचता हूँ उस परिप्रेक्ष्य में मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। भारत की आज़ादी के पूर्व जो है बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के गतिविधियाँ बिहार में होती थी। अंग्रेज़ों की गतिविधियाँ बोलने पर विशेषकर अभी आई थिंक आप लोगों में से एक व्यक्ति ने सूचित किया था यहाँ पर गन्ने के फैक्ट्रियाँ होते थे, और मैं आपको उसके साथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ इंडिया में उस ज़माने में जो है ब्रिटेन की ओर जो एक्सपोर्ट शुगर का एक्सपोर्टिंग होता था, चीनी का जो एक्सपोर्ट होता था वो बिहार के फैक्ट्रियों से होता था। उतना हाई क्वालिटी शुगर यहाँ से प्रोडक्शन होता था, उसका प्रोड्यूस होता था। तो इस प्रकार बहुत सारे फैक्ट्रीज, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आदि बहुत कुछ जो है अंग्रेज़ों के समय में क्रिश्चियन मिशनरीज और ऐसे लोगों के द्वारा यहाँ पर होते थे। परंतु आज़ादी की लड़ाई के दरमियान बिहार ने काफ़ी कुछ खोया है। बहुत सारे वीर कुंवर सिंह और बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी लोग जो है यहाँ से शहीद हुए हैं, और भारत के आज़ादी में बिहार का योगदान बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को जो है माने ब्रिटिश लोगों ने फांसी पर चढ़ाया। तो भारत आज़ाद होने के बाद भी यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा चलाए जाने वाले इंस्टीट्यूशंस होते थे और बहुत सारे ऐसे संस्थानें होते थे जो यहाँ के डेवलपमेंट का एक अविभाजित हिस्सा था। परंतु भारत आज़ाद होने के बाद जो है अंग्रेजी शासक लोग तो चले गए, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पर अपनी सेवाएं जारी किए। परंतु स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश मिशनरीज और ब्रिटिश ऑफिसर्स और क्रिश्चियन मिशनरीज दोनों को अलग अलग करके नहीं देख पाए, और वे लोगों ने सोचा ये क्रिश्चियन मिशनरीज जो है अंग्रेज़ों के जो है एजेंट्स हैं, तो वे लोगों ने क्रिश्चियंस और क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर में बड़ी बड़ी हमलाएं की। बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पर शहीद हुए जो निर्लोभ तरीके से त्याग की मानसिकता से लोगों की सेवा कर रहे थे। इस प्रकार यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में जो शैक्षिक जो क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र है, उसमें बहुत सारी परेशानियां हुई। साथ ही साथ जो गन्ने के फैक्ट्रीज थे जो है वो सब बंद हो गया। उसमें करप्शन एक कारण है, बहुत सारे और भी कारण है, लेकिन जहाँ तक करप्शन आदि बातों की चर्चा जब हम लोग करते हैं तो ये करप्शन आदि के सब खिलाफ में समाज को सिखाने वाली एक बड़ी ताकत जो है क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियन मिशनरीज और क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को भगाने की कोशिश की, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करने की कोशिश की, उसका प्रभाव समाज में पड़ा। और एक मसीही सेवक के रूप में मैं सोचता हूँ कि क्रिश्चियंस के ऊपर में और क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर में और अन्य फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर में जो हमलाएं हुई है वो बिहार के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण था। Okay. Ajay Nimmi, you know, evangelist J.B.K. Simon is also a good songwriter. Did you know that? नहीं भैया, मुझे नहीं मालूम था। ओहो, ओके बॉब। तो मैं जीबी भैया से पूछना चाहती थी, हाल ही में आपने एक गीत लिखा था, मैंने सुना है, हम सफर होके तो साथ है। इस गाना को लिखने का कारण या प्रेरणा आपको कहाँ से मिला और इस गीत का मतलब क्या है, और हमें थोड़ा बता सकते हैं जो ये हमारे आत्मिक रूप में सहायता कर सके? ज़रूर निमी जी, ज़रूर। वास्तव में उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। आप लोग जानते हैं कि मैं बिहार में कुछ लंबे साल से, लगभग 25 साल से बिहार में हूँ, लगभग 19 साल से पूर्ण समय सेवकाई में हूँ। और इस सेवकाई के दरमियान मैं कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा ये कोशिश करता रहा मसीहत के अंदर में भी
विशेषकर मसीही कलीसियाओं के अंदर में भी और सेवा के क्षेत्र में भी कुछ त्रुटियां, मिस्टेक्स आदि जो हो रहे हैं उसको सुधारने की एक कोशिश मैंने की। विशेष करके सेवा करने वाले लोगों में से कुछ लोग जो आर्थिक बातों में जो अनफेथफुल हुए हैं, विश्वास योग्यता नहीं दिखा पाए, और कुछ ऐसी कमी घटिया है जो इस पब्लिक प्लेटफॉर्म में मैं बोलना नहीं चाहता, तो उसको सुधारने के लिए मैं कुछ सलाह रखे और कुछ कमी घटिया जो हुई उसकी आलोचना में खुलेआम इस उद्देश्य से किया ताकि हम अपने मसीहत को सुधार सके, सेवकाई में हम लोग आगे की ओर अच्छा से बढ़ सके। परंतु मैंने जो प्रतीक्षा की थी ऐसा अंजाम उसका नहीं हुआ। हमारे ही बीच में से बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ हो गए और मेरी बदनामी करने लगे, और मुझे एक ऐसा फीलिंग हुआ इस सेवा के क्षेत्र में मैं बहुत अकेला हो गया है, और मैं बहुत निराशा में हो गया कि मैं सोचा कि इस प्रकार अगर सेवा करने वालों के ही ओर से एक साथी सेवक के खिलाफ में इस तरह की परेशानी अगर हो तो सेवा क्षेत्र में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगी। परंतु प्रभु जिसने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया उसने मुझे हिम्मत दिया। प्रभु ने कहा कि कोई भी साथ क्यों ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। तो प्रभु ने उन दिनों में, विशेषकर ये हाल फिलहाल की बात है क्योंकि ये गाना ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 1-2 साल मात्र पुराना है, शायद 1 साल पहले ही इसका रिलीज़ हुआ है। तो ऐसी परेशानी से जब गुजर रहे थे, प्रभु ने मेरे अंदर में मुझे ताकत देते हुए कई बातें दी हैं। उन बातों को मैं अपनी परिप्रेक्ष्य में गीतों में तब्दील किया है। हम सफ़र हो के तू साथ है तो डरने की क्या बात है। हम सफ़र मतलब को पैसेंजर, साथ चलने वाला। अगर साथ चलने वाले आप हैं तो डरने की क्या बात है। हाथ थाम कर तो साथ है, मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। अगर प्रभु मेरे हाथ थाम कर मेरे साथ है तो ज़रूर मैं मंजिल, लक्ष्य स्थान में पहुंच जाऊंगा। और इस गीत के अंत में मैंने इस प्रकार भी लिखा है कि एक दिन मुझको और आपको सबको सेवा करके प्रभु के सामने खड़े रहना है। हम यहाँ पर इंसान को खुश करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के सामने जब हम खड़े हो जाएंगे, प्रभु हमसे जब सवाल करेगा तुम क्या कर रहे थे, तो क्या हम जवाब दे पाएगा। तो प्रभु मेरे अंदर में एक बड़ी ताकत मिली है, एक बड़ा अनुग्रह प्रभु से पाया कि मुझे प्रभु को ही खुश करना है, इंसान को खुश नहीं करना है और इंसान की ओर देखना भी नहीं है। तो उन निराशाजनक समय में प्रभु मुझे सांत्वना देते हुए जिन शब्दों को दिया उसी को मैंने इस गीत के रूप में तब्दील किया है। वंडरफुल। तो निमि जी वही गाना सुन के वापस आएंगे? हाँ जी, हाँ। All right, here we go. बहुत अच्छा Let's लगेगा। listen to that song and we'll come right back. हम सफर हो के तू साथ है, डरने की क्या बात है। हाथ थाम कर तू साथ है, मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। हम सफर हो के तू साथ है, डरने की क्या बात है। ओ हाथ थाम कर तू साथ है, मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। पत्थर हो, कांटे हो रास्ते में पूरे, दिल में पूरे दर्द हो। अपनों से दूरी, दुनिया की दुश्मनी, दोस्त भी सारे छोड़ दे। साथ चलने वाला कोई ना भी हो, मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा।
सफर हो के तू साथ है, डरने की क्या बात है। आत्मा को खोजने, शुभ संदेश बांटने, दूर दूर गांव शहर जाऊंगा। दिन भी तो कम है, समय कहाँ बच गया, रोज बरोज मैं जाऊंगा। आत्मा को जीत कर आऊंगा, प्रभु से प्रतिफल पाऊंगा। हम सफर हो के तू साथ है, डरने की क्या बात है। बहुत ही खूब गाना, बहुत ही खूब गाना। जी भैया, मेरे को लगता है ये आपकी गवाही के जैसे ही के ऊपर ही आपने गाना लिखा है। जी भैया, आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने जी। बताया थोड़ी देर पहले कि बिहार में मिशनरियों का काफ़ी योगदान रहा है, परंतु उनके योगदान को की परवाह ना करके लोगों ने उनको सताया, उनको बहुत कष्टों में जाना पड़ा, जी। उनकी हत्याएं भी की। जी। पर आप पिछले 25 सालों से बिहार में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। बिहार क्यों? मेरा सवाल है, आप बिहार क्यों? जी, आपके प्रश्न से मुझे जो समझ में आ रहा वो यह है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं बिहार को क्यों चुना, और मुझे लगता है कि वो प्रश्न पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि मैंने बिहार को चुना नहीं है। क्योंकि जिस साल में मैं बिहार में एक्सीडेंटली आया था, तो मैं वास्तव में बिहार में रहने या बिहार में प्रभु की सेवा करने नहीं आया था। जैसे प्रारंभ में मेरा इंट्रोडक्शन किया था, मैं मेडिकल टेक्नोलॉजी में एक डिप्लोमा लिया हुआ व्यक्ति था, और मैं वो डिप्लोमा लेकर के केरल में चेंगन्नूर नामक जगह में मामन मेमोरियल नामक हॉस्पिटल में ट्रेनी के रूप में काम भी कर रहा था। और मुझे उन दिनों में एक प्रॉमिस था कि दोहा में, गल्फ़ में दोहा में एक नौकरी का ऑफ़र भी था। इसी बीच एक्सीडेंटली मैं बिहार आया था, तो मैं बिहार में रहना भी नहीं चाहा था। लेकिन ये प्रभु की योजना थी, वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, उतना बोलने के लिए हमारे पास समय अपर्याप्त है, इसलिए मैं ऐसा करने का साहस नहीं करता हूँ। तो पहली बात यह है, ये मैंने बिहार को नहीं चुना है, प्रभु अपनी दया के कारण मुझे बिहार के लिए चुना, उन्होंने मुझे यहाँ पर रहने का अनुग्रह दिया है। जी भी भैया, जी। हम जो है आपके सेवकाई के बारे में अगर सुन रहे थे, आप इतने सालों से वहाँ सेवकाई कर रहे हो बिहार में, और परमेश्वर की महिमा हो रही है उसके द्वारा। मेरी प्रश्न ये है कि आपके जो है इस सेवकाई के दौरान, आप इतने साल परमेश्वर की सेवकाई की है, मेहनत की है, ऐसी कौन सी एक अविस्मरणीय या फिर एक स्मरणीय एक अनुभव है जिसे आप भूल नहीं सकते? बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ऐसी एक अनुभव जिसको आप याद करके आज भी आपके आंखें भर आती हैं। जी बिलू जी, वास्तव में ऐसे ढेर सारे अविस्मरणीय घटनाएं हैं जो भूल नहीं सकते हैं। आंखों से मैं कभी कभी कहता हूँ आंसू नहीं, खून बहे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के दरमियान कहने के लिए मेरे मन में जो घटना याद आ रही है, वो वास्तव में मेरा एक पराजय की कहानी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां प्रभु ने मेरी मदद की है, विशेषकर सेवकाई के शुरुआत में काफ़ी कठिनाई और परेशानी से जब गुजर रहे थे, अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमारे जीवन के लिए जो प्रबंध किया है, वो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन आज जो मैं एक ऐसी घटना बोलना चाहता हूँ जो हमेशा दैट इंसिडेंट हॉन्ट्स मी, नॉट ओनली मी बट माई वाइफ ऑल्सो। कटिहार में आने के बाद हम लोग कलिसिया
की सेवा कर रहे थे। 2006 में हम लोग कटिहार आए हैं। 2007 में कटिहार की कलीसिया की स्थापना हुई है और विशेषकर हम लोग यहाँ के लोगों के बीच में सुसमाज प्रचार की सेवा में लगे हुए थे। तो उसी सब दरमियान हमारी कलीसिया में एक विधवा बहन आती थी। वो उद्धार पाई, बपतिस्मा ली और कलीसिया में संगति कर रहे थे। उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। वो बहन, उनके नाम सुशीला था और बहन सुशीला बीच बीच में हमसे कहती थी, ब्रदर मेरे माथे पर जो है हमेशा दर्द बना रहता है, मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी और इसलिए आप मेरे बच्चों को कोई मसीही संस्थान में रख दे ताकि मुझे कुछ हो भी जाए तो मेरे बच्चे लोग अनाथ ना हो जाए। लेकिन मैंने सोचा कि एक माथा दर्द इतनी सारी परेशानी की नहीं हो सकती, अगर उनको कुछ ज़्यादा परेशानी हो भी जाए तो हम लोग इलाज कराएंगे। और दूसरी बात, कलीसिया में बहुत सारे और भी विश्वासी थे जो गरीब थे, तो एक बहन के बच्चों के लिए ऐसा करने जाएंगे तो बाकी सभी बच्चों के साथ भी ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उनकी आवश्यकता का नज़रअंदाज कर दिया। परंतु एक दिन जो है गाँव से एक दूसरी बहन मुझे फ़ोन की और फ़ोन करके बताई, बहन सुशीला कुछ मतलब अनाप शनाप कुछ बोल रही हैं और लगता है उसको कुछ हो गया। मैं और मेरी पत्नी जास्मिन जो है जल्दी से जल्दी हम लोग गांव पहुंचे। उस समय में एक मानसिक स्थिति बिगड़ा हुआ व्यक्ति की तरह वो कुछ बोल रही थी और मुझे समझ में आया उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है और हम लोगों ने उसको एक मानसिक चिकित्सक के पास पहुंचाया और मुझे पता चला एक्चुअली शी वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और ये डिप्रेशन जो है अवसाद वो बढ़ने के कारण उसके मानसिक संतुलन खो गया। एक्चुअली फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में अवसाद या डिप्रेशन की परेशानी में उसी समय सामना कर रहा था और हम लोगों ने उसका इलाज शुरू किया और एक बहन उसको अपने घर में रहकर जो है उसकी सेवा कर रही थी और मेडिसिन की सारा खर्च में ले रहा था और उसका इलाज जैसे चल रही थी उसी समय में उसी महिला का देवर चाहता था कि रोड साइड में उनकी जो संपत्ति है, छोटा सा घर और छोटे कुछ ज़मीन है, उसको हड़प ले और उन्होंने क्या कर दिया है, ज़बरदस्ती उस महिला को वहाँ से छुड़ा कर ले गया। हम लोगों ने कितने भी रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हम लोग के कब्ज़े में उसको छोड़ा नहीं। बाद में उसका इलाज बंद हो गया और फिर शी स्टार्टेड टू सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन और फिर वो मानसिक संतुलन खो गई और बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ वो सिस्टर शी कमिटेड सुइसाइड, आत्महत्या कर दिया। और ये घटना हमें अभी भी जब मैं कहता हूँ तो अजीब सी दर्द मेरे हृदय में है। और फिर बाद में हमने उस तीनों बच्चे को मुझे देने के लिए कहा, लेकिन उस देवर को लोगों के सामने दिखाना था कि वो बच्चों को देखरेख कर रहे हैं ताकि उस संपत्ति को वो हड़प सके, लेकिन वो बच्चों की देखरेख नहीं किया। वो बच्चे सब उनके घर से भाग गए और ये अभी तक मैं सोचूंगा कि स्वर्ग में जब सुशीला सिस्टर को मैं जब मिलूंगा तो मुझे उससे माफ़ी मांगना पड़ेगा, सिस्टर आपकी मांग को मैं पूरा नहीं कर पाया। परंतु वो ये मेरा जीवन का एक पराजय है। आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट, माई फेलियर। परंतु ये घटना अनाथ बच्चों के लिए एक ऑर्फनेज शुरू करने की और मुझे और मेरी पत्नी को प्रेरित किया है। और ये घटना एक ऐसी घटना है तब तक मेरे साथ रहेगी जब तक मैं संसार में रहूँगा। थैंक यू ब्रदर। डिप्रेशन जो आपने बताया, सच में ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग बॉब्स रेडियो में आगे भी एक सेशंस रखेंगे इसके लिए। ब्रदर आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा जी। ये मेरे मन में आया, गिदियन को परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया कि वो परमेश्वर उसके माध्यम से इज़राइल को बचाएगा जी। क्या आपको ऐसी परिस्थिति या अनुभव या घटना आपके साथ हुई जिसने आपको ये आश्वासन दिया कि बिहार में मसीह की आशा अभी भी है? ज़रूर। कभी कभी बहुत सारी निराशाजनक घटनाएं होती हैं, परंतु उसके बीच में भी ऐसा लगता है कि आशा के लिए अभी भी कुछ बातें बाकी है। एक घटना
जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2010 में 2010 में मेरे हाथ में किसी प्रभु के लोगों ने कुछ पैसे दिया, और उस जो पैसा उन्होंने दिया था, उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर एक छोटी सी ज़मीन खरीदे ताकि प्रभु के लोग इकट्ठे होकर सुविधा के साथ आराधना कर सके। और हम लोगों ने लगभग 8 डेसिमिल, दैट्स इक्वल टू अराउंड 8 सेंट्स, 8 डेसिमिल ज़मीन खरीदे। और हमारे जो कलीसिया के रीति के अनुसार जो है वो स्टीवार्ड एसोसिएशन के नाम में उसमें से 5 डेसिमिल भी रजिस्टर किए, जबकि स्टीवार्ड एसोसिएशन के उस समय के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने मुझसे कहा था मात्र 2 डेसिमिल ही लिखना है, बाकी ये आपकी पैसा, आपके हाथ में दिए हुए पैसे थे और इसलिए बाकी आपके नाम में लिखना है। परंतु मैंने कहा ये तो मैं सेवा में हूँ इसलिए मुझे ये पैसा मिला, तो मैंने उसमें से ज़्यादातर ज़मीन स्टीवार्ड एसोसिएशन के नाम में ही लिखा। और वहाँ पर 2012 में हम लोगों ने कलीसिया भवन का निर्माण के लिए पिलर वगैरह खड़ा कर दिए। और इसी बीच में जो है कुछ लोगों ने वहाँ के कंस्ट्रक्शन को रोकने के उपलक्ष्य में मेरे खिलाफ में और मेरे ज़मीन के कंस्ट्रक्शन रोकने के उद्देश्य से केस कर दिया। वास्तव में जब मैं उस केस का अध्ययन किया तो पता चला कि ये लोग फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बना करके हम लोग को हरासमेंट करने के उद्देश्य से वो केस किया था। और लगभग 3 कोर्ट में केस चली और उन दिनों में बहुत मानसिक संघर्ष से गुजरना पड़ा। बिहार जैसे एक जगह में विशेषकर साउथ इंडिया से आया हुआ एक व्यक्ति, मुझको कई बार कोर्ट में जाना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियों से गुजरनी पड़ी। और उन दिनों में मेरे एक वकील साहब था, वो मेरा केस लड़ने वाला नहीं था, बट मेरा एक अच्छा परिचित मित्र था। उनका नाम जो है एडवोकेट शिवशंकर सिंह है। वो एक्चुअली एक क्रिमिनल लॉयर है। तो उन्होंने मुझसे कहा हमारे केस जो है एक सिविल केस के तरह चल रहा था, जबकि एडवोकेट शिवशंकर सिंह ने मुझे कुछ पेपर्स वगैरह निकालने के लिए कहा। वो सब मैं निकाला तो उन्होंने मुझे पता चला है कि 40 साल पहले मरा हुआ एक व्यक्ति का फ़ोटो लगा करके और बहुत ही गलत तरीके से फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बना करके इस ज़मीन पर हमारे जो ओपोनेंट्स है वो लोग दावा कर रहे थे। और इसलिए एडवोकेट शंकर सिंह ने कहा कि देखिए सर, ये जो है सिविल केस नहीं है, ये क्रिमिनल केस है, इसलिए आपको क्रिमिनल केस करना है। जब क्रिमिनल केस करेंगे एटलीस्ट 3 नॉन बाइलेबल केसेस उनके ऊपर में होगा। विशेषकर आप माइनॉरिटी के हैं तो माइनॉरिटी व्यक्ति को हरास करने के कारण नॉन बाइलेबल केस होगा। फिर संस्था माइनॉरिटी है, फिर फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाया, ये आईपीसी 420 की धारा पर आता है, 410 आईपीसी, तो नॉन बाइलेबल ऑफेंसेस है। तो उसको जब वो अंदर हो जाएगा तो वे लोग आपके पास कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा सर किसी भी कारणवश मैं उनके खिलाफ केस नहीं करूंगा। जो भी केस उन लोग किए उसका मैं रेस्पॉन्ड कर रहा था, लेकिन मैंने कभी केस उन लोग के खिलाफ नहीं किया। मैंने बोला सर मैं केस नहीं करूंगा, मुझे मालूम है अगर मैं केस करूंगा तो वो लोग जेल जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता, मान लीजिए मैं 10 साल 15 साल या 20 साल यहाँ पर सेवा करूँ, कल मैं यहाँ से चले जाऊँ और मेरे पीछे आने वाले कोई मुझसे कहे, मेरे बारे में कहे कि ये 20 साल कटिहार में यीशु मसीह की सेवा की, 5 लोगों को जेल भेज दिया या 10 लोगों को जेल भेज दिया, तो मेरी क्या गवाही रहेगी? मैं यहाँ किसी को जेल भेजने नहीं आया, और मैं अगर संभव है तो जेल में जो लोग हैं उसको भी बाहर लाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसलिए किसी भी कारणवश मैं हमारे जो लोग मेरे खिलाफ केस कर रहे हैं उनके खिलाफ मैं केस नहीं करूंगा। उस समय ये जो एडवोकेट है, एडवोकेट शिवशंकर सिंह, वो एक राजपूत घराने का एक बहुत ही रिच और कुलीन परिवार का व्यक्ति है। एडवोकेट शंकर सिंह ने मुझसे कहा सर मुझे एक बाइबल चाहिए। तो मैंने उनके चेहरे पर मुस्कुराते हुए
देख रहा था, उस समय उन्होंने कहा, देखिए सर, इस प्रकार सोचने के लिए, अर्थात आपके दुश्मनों के खिलाफ केस नहीं करेंगे, मैं उनको जेल भेजना नहीं चाहता, इस प्रकार कहने के लिए आपको जो पुस्तक प्रेरित करती है वो पुस्तक मुझे भी पढ़ना है। और मैंने उनको एक बाइबल दे दिया और अभी तक वो मेरे संपर्क में है। अभी उधार पाकर के तो वो अलग नहीं हुआ, लेकिन प्रत्येक दिन वो मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं, मैं यहाँ से उनको जो है गॉस्पल मैसेज शेयर करते हैं। तो अभी भी वो रिश्ता बना हुआ है। और अर्थात मैं ये कहकर आपका प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ, अभी भी अगर मसीही गवाही हम बनाए रख पाएंगे, यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार हम जीवन बिता पाएंगे, बिहार कितने भी कठिन क्षेत्र क्यों न हो, हम इसे जीत सकते हैं। उसका उदाहरण है एडवोकेट शंकर सिंह। प्रभु की स्तुति हो। सच में परमेश्वर कभी भी किसी के अंदर भी काम कर सकता है, और जिस प्रकार आपने बताया, सच में परमेश्वर ने एक महान कार्य को आपको देखने के लिए परमेश्वर ने आपके जीवन में ऐसे सौभाग्य को प्रदान किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब भी सच में हम आपके जीवन की गवाही से बहुत ही आशीषित हुए, आपके जीवन की घटनाओं से हमने अपने आप को उत्साहित किया, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन के द्वारा हमसे बातचीत किया। पर आखिरी में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल कि आप हमारे जो सुनने वाले हैं, आप उनको कुछ अपने शब्दों से उनके लिए उन्हें उत्साहित कर सकते हैं, या उत्साह के कुछ शब्द आप कह सकते हैं? जी जरूर। मैं कहना चाहता हूँ कि मसीही जीवन बिताना आसान नहीं है, क्योंकि हम एक पाप से प्रदूषित संसार में जीवन बिता रहे हैं। विशेष करके इन अंतिम दिनों में पाप और अधर्म जो है इतना अधिक बड़ा है कि एक पवित्र जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। और इसलिए ही कई मसीही लोग मसीही जीवन बिता करके निराश हो जा रहे हैं। कई प्रभु के सेवक लोग भी यहाँ तक मसीहत के अंदर के भी प्रदूषण को देख करके निराश है। परंतु मैं कहना चाहता हूँ मेरे व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से, अभी भी अगर प्रभु पर भरोसा करते हुए, वचन की शिक्षा के अनुसार कष्ट उठाते हुए, गवाही के साथ अगर हम जीवन बिता पाएंगे, अभी भी बहुत सारे लोगों को आग के झील से हम बचा सकते हैं। और हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु अनुग्रह दे कि हम आपके वचन के अनुसार पाप से प्रदूषित इस संसार में कष्ट उठाते हुए भी क्यों ना हो, आपके लिए गवाह बन सके। थैंक यू सो मच जय भैया, थैंक यू सो मच। और मैं विश्वास करता हूँ हम सब जितनों ने जय भैया की जीवन की गवाही को सुना है, जय भैया के उत्साह के भरे शब्दों को हमने सुना है, हमने जरूर आशीष को पाया है, परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। थैंक यू सो मच जय भैया। और मैं थैंक यू आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म में आकर के मेरी गवाही को, मेरे अनुभव को रखने का अवसर दिया। बॉब्स रेडियो के सभी ऑर्गेनाइजर्स और इसके पीछे जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं, आरजे बॉब और आरजे अनुज, आरजे सिंह और आरजे निमी और जितने भी आरजे जैकब जी, और आप सभी को फिर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। परमेश्वर को सारी बातों में महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। और अब समय हो चला है कि हम एक दूसरे को बाय और अलविदा कहें। और मेरे जितने आरजे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्यों ना हम अपने सुनने वालों को बाय बोलते हुए यहाँ से जाएं। गुड नाइट, और सबको जय मसीह की अनुज की तरफ से। गुड नाइट अनुज। सबको जय मसीह की शुभ रात्रि आरजे बिल्लू की तरफ से। शुभ रात्रि आरजे निमी। सारे श्रोताओं को जय मसीह की और शुभ रात्रि फ्रॉम आरजे निमी। Okay. All right. Thank you for that, Singh Saab. Thank you so much. And once again, thank you so much, Bob.
Thank you, Evangelist Jebi K. Simon, for that wonderful segment, taking us through your life and through your experiences and what God is doing to you in that wonderful land of Bihar. Well, dear listeners, do join us next week, same time, same place, on our Monday to listen to our Hindi broadcasts. And I hope this has been a blessing to you. We have enjoyed bringing this to you today, and we hope that you will keep listening to us. Please do share this with your friends and family and let them also be blessed. Once again, from all of us here at Bob's Radio, it's time for us to say goodnight and sign out. This is Bob signing out. Goodbye, good night, and God be with you.